I'm always on that side, so मुझे थोड़ा और Ma'am is editor Filmfare Middle East. Now she's an author, writing books and lot of other things which we don't know. थैंक यू। जो इसका बाइक नहीं लगा अब तो बाइक बस ये ला रहा है। आइए आइए, घूम लीजिएगा बजूका वाला। तो आपके लेफ्ट में मैम सेंटर या थैंक यू मैम। थैंक यू। डन डन। हाँ भाई हाँ वो बाइक भी खड़ी है। Yes. Well, the book is about 620 pages, so I think they are asking to be quiet. So. Okay, the book can I keep there? Okay, so the book took me 4 years to be written, and it stands 620 pages. It's got pictures from 1924 to 2024, and it's a very important book because it's got some really old photos of Bollywood. You have Madhubala, you have all Devanand, Dilip Kumar, very rare pictures. ये pictures किसी ने देखी नहीं है, ये नई pictures हैं, इनकी family में जो थी वो pictures हैं ये। तो बहुत छांटे हमने, बहुत सारे पिक्चर्स में से हमने इतनी पिक्चर्स डाले हैं, नहीं तो बुक 4 एडिशंस की हो जाती, 1000 पेज के ऊपर हो जाती, तो कोई नहीं पढ़ता। अभी 620 की नंबर 620, सो होपफुली लोग पढ़ेंगे उसको। एंड आई वुड लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स इन द बुक। मिस्टर लाल जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। ही इज समबडी हु इज़ हैड द ब्रूटल ऑनेस्ट, इज़ अ ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन। तो फिर I'd like you to read it and that's all. Good luck and thank you for coming. मैं usually उस साइड पे होती हूँ, मुझे इस तरफ rarely होने को होता है, but I think yeah, right, yes. Mm-hmm. Right. So the beauty is yes. So विनोद मेहरा इनके बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, मिस्टर राजन लाल के, और जब उनसे मेरी बात हो रही थी उनके बारे में वो चैप्टर के लिए, तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, उनके इतने प्यारे दोस्त थे वो। तो वो आई फाउंड दैट वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज ही इज़ समबडी हु कीप्स हिज फ्रेंड्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। एंड ये सारे उनके जो भी नाम इन्होंने बोले हैं वो सारे उनके दोस्त थे। So you have a lot of instances in the book which are very personal, between two people. और ये हमने थोड़ा सा present किया है बाहर। ऐसे बहुत सारी stories हैं जो हम लिख ही नहीं पाए because we can't write them. But there are many stories that are very beautiful about the book. Then अनुपम खेर जी को तो आपको पता है कि सारांश का जो रोल था वो is because of Mr. लाल। उन्होंने उनको encourage किया महेश भट्ट को कि वो उनको वो रोल दें। So that is one important part of the book. और भी लोग हैं इस जर्नी में जो बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। सुनील दत्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक। वो उनके मेंटोर रह चुके हैं एंड हैज़ बीन थ्रू हिज जर्नीज व्हेन संजय दत्त वेंट टू जेल एंड ही वाज देयर व्हेन दे वेंट टू टेक हिम फ्रॉम जेल। सो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने फ़ोन नंबर उनको, आई थिंक ही गिफ्टेड देम सेल फोन्स विद द बर्थ डेट्स ऑन देम। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं बुक के बारे में, पढ़िए ज़रूर एंड आई होप यू ऑल लाइक इट एंड एन्जॉय इट। That's it. Thank you for coming and thank you for being part of the evening. Yeah. That's it.
आजा गगन साथ में। थैंक यू। Yes. Yeah. Yeah. Thank you. Just Mr. Nag has spoken so fondly about Yeah. Rajasthan, about you, about the whole family. I did it my way. What do you have to say, your fond memories about Mr. Nag? lots of fond memories of my father and Mr. Rajan Lal, and I think it's really wonderful that he's been able to really pen down his entire life in this book. I'm very excited about it because I think I don't know a lot about his life except the time when he was with my father, and I'm looking forward to reading this book. Anything, any memory of both of them together that you have that you can share with us, or anything special? So I think the relationship between Rajan and my dad was very, very special. They were very good friends, but I think it was like a father and son relationship, you know, which I learnt little later. And I remember Rajan always pampering my father. You know, every time he used to come and meet my father, he would get him a little gift, and that would really excite my father and have this big smile on his face, and he used to show off the gift, see what Rajan got for me. So I think it was a beautiful and a lovely relationship that they shared. Yeah. Thank you so much. Thank you. मैडम जी आप बात करेंगी राजू जी, आपकी और रूप जी की कुछ memories, राजन लाल जी के साथ, which you would like to share? Yes, first of all, my heartiest congratulations to dearest Rajan Bhai. And we go back very long way. And of course, music was the common factor which bind us together. And not only is he a great music lover, but a very sensitive person. And we immediately, kind of bonded with him. And we've done so many shows with him. We've performed in his house. In fact, his house was one of the first places where Roop Kumar ji performed, and consequently we performed in Dubai. And I think it's going to be a very, very interesting read. So all the best to him always. Thank you.
थैंक यू. Lal I knew closely for about 8 years. I am quite honored to be here for this function of release of his book, and I wish him all success. Thank you so much. पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. सद्गुरु साईनाथ देवता प्रसादात् परिपूर्णमस्तु. धन्यवाद सुलागे महाराज जी, धन्यवाद बहुत बहुत. थर्ड जून 1981 को मैं लखनऊ से मुंबई आया था और मुझे लगा था कि यहाँ पर उन दिनों टैलेंट ज़रूरी था, पर पता लगा कि यहाँ हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट से. आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल और ये तो आप बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक देख रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल निकलते हैं तो आप इधर आधे से इधर निकलते हैं. तो यहाँ पर मैं जिस भी ऑफिस में जाता था वो कहते थे कि टैलेंट तो ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल नहीं है आपके पास. At that time I called up one day Mr. Mahesh Bhatt and very strangely he said, हाँ आ जाओ कल आ जाओ. That was very rare thing to be called as a struggling actor. तो मैं उनसे मिला उनके पाली हिल वाले फ्लैट पे. जब मैं वहाँ से नीचे आया तो एक शख्स ऐसे ही दिखते थे तब भी, आज से कम 42 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पियोगे. I was very touched that he felt that I was compromising with my dignity because I was looking for work and I had no place to stay, and he was very kind to me. And that's what those days one needed, kindness. Because in the city, when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक में, एंड ये मुझे खाना देते थे. बहुत इम्पोर्टेंट था. आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. एंड देन नॉट मेनी पीपल नो that I was thrown out of the film just 10 days before Saransh's shooting was to start. And मेरी जगह
हरि भाई को ले रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं, तो मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आप में सत्य नहीं है। आपने मुझे 6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा और अब आप 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन, तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था। और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा वो कुछ खा लो। कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। बट what I want to say actually about him, that when you're looking for a destination, you look for a tree under whose shade you want to sit down. So Rajan was the tree which gave me shade in those days, and that's what is very important. Because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह। आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड लक। एंड आई सॉ माइन एंड किरण's पिक्चर, it reminded me of so many, gave me so many memories. And the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from today, tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. God bless you all. Thank you. वर्सेटाइल मिस्टर अनुपम खेर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तालियां एकदम भरपूर और जोरदार। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया बहुत बहुत। नाउ कैन वी वॉच दैट एवी दुबई में जो 8 फरवरी को लॉन्च हुआ है, उसकी कुछ झलकियां हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। Much more than this. इतना प्यार दिया है, इतना प्यार मिला राजन भाई, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डाइस पे खड़ा हूँ। He knows and I know that how much we love each other. So thank you Rajan bhai for showing us the way, and I'm sure we will learn a lot from this book. राजन लाल, हम कहते हैं तुम हो राजन के राजा। He is a man with a very very big heart. I've known him for many years now, because he's not only been a good friend, a very good business partner. He always says my way. He never says highway. That's the great part of him. है वो, और मैं गुजारिश करूंगा कि वो पोडियम पे आए और कुछ कहें। प्रिया दत्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। Thank you so much to give me this honor to represent Dad today, Rajan. Thank you very much. I know, I mean, it would be very different if he was here. And all I can say about Rajan and my father's relationship is, it was a very unique one. When I got to know Rajan, I was very young. I was, I think, very young, and my memory. Yes. So I like to be there with that. I remember coming to his office with Dad. I remember there was an inauguration in your office. And I was like taken aback by seeing that big office, and everything was wow. Sai Baba ki badi murti thi, wahan puja ho raha tha, and that was my first thing of Rajan, Dad's friend, and wow, what a great office and everything. And from there on, I think their relationship built, and I always saw Rajan as my father's friend. So earlier I used to call you uncle. Then I realized the relationship is not just a friend.
I think it was much more. It was like a father and son relationship. And I always remember that, you know, whenever Rajan used to come and meet my father, he used to get him little gifts. Pens and watches, and my father would be so excited. It was like this child who's getting a gift, and he would have this big smile on his face and he used to show off, see what Rajan has got for me today, you know. So I think that was that really wonderful, sweet relationship. And I also want to say that we saw Auntie's blessings for you, Rajan, and I think you have really lived up to those blessings, because all your relationships that you've maintained all these years, and we can see this entire house is full of all the people who love and care for you, and I'm really overwhelmed to see that, and I can see so many people here who have been part of that journey with you, with my father, and you know, and you thought of me today to represent Dad has been a very big moment for me. So thank you for having me here for this big day. And I'm really, really looking forward to reading the book, because there is so much about you I don't know. So much. And I'm really looking forward to understand what your life has been, with the good, the bad, and the ugly. So why not? I think that's a great way of, you know, being so honest about your life. And you've penned it all down in a book, which is wonderful. Before she goes, she has to go a little early. And I'd like to thank Priya for coming today. And especially because the book is dedicated to Dutt Saab. My fond love memories, Dutt Saab, is all because of my friend and mentor, Mr. Shatrughan Sinha. And please give him a round of applause. And I met Dutt Saab through Shatruji. And I am always be grateful to you for having introduced me to him. And we've had some lovely times together in our bungalow in Andheri. But Dutt Saab has been an inspiration to me all my life. And his positivity, his determination, his grit. And he actually lived his life his way. And this book is dedicated to him because he did it his way. And even if I am 10% or 20% of Dutt Saab, or what I've seen and learned from him, I think my life has been successful. Another person who's been a great source of inspiration and inspiration and motivation for me has been Mr. Shatrughan Sinha today. And big round of applause to him for coming. And he has also written the foreword of my book. And it's so nice of him today that he has planned to grace the occasion as our chief guest. And I thank you, sir, for coming. And Jitu ji, thank you, sir. We've been friends. Rakesh ji, Shashi, Sonu, Poonam, thank you so much for coming, Anu. That all of our friends, we last 40 years, 45 years friendship. And this celebration or launch of the book is less of a celebration, more of a reunion of old friends like Mr. Dinesh Nair, who's sitting here, who is the owner of Leela Hotel. And I must thank him for hosting us and hosting this whole occasion. He has been very hands-on and an old friend of 50 years for me. And I would like to thank you, Dinesh and Madhu, for being here. I'd like to thank Mr. Ketan Desai and Kanchan for coming. And Mr. Kanchan and Ketan. Ketan came for my Dubai launch. Thank you, Ketan, for coming so much. And all my other friends who've been here, who've come from Dubai and from Delhi and everywhere else. And thank you so much for all coming here and being here today. Thank you so much. Thank you, Priya. Let me give you your book. थैंक यू सो मच प्रियादा, थैंक यू सो मच राजन सर, शुक्रिया बहुत बहुत.
और जैसा कि सर ने कहा है कि मोर देन अ बुक लॉन्च दिस इज़ अ फ्रेंड्स रीयूनियन। कुछ दोस्त यहाँ पर नहीं आ पाए, उनसे भी आपको वीडियो के ज़रिए हम मिलवा देंगे। सो ये जो कहानी अभी अनुपम खेर सर ने सुनाई थी, उसमें एक नाम था महेश भट्ट का, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, और उनका भी और जिस डॉक्यूमेंट्री का मैंने नाम लिया, मैं अब उसके डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूं। और एक मेरा सिर्फ डर यही है कि ये राजन सर की सबसे ज़्यादा सीक्रेट इस कमरे में अगर कोई जानता है तो वो शशि सर हैं। शशि रंजन के लिए ज़ोरदार तालियां बजे। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के कुछ कहें। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, पोइट्री करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आके कुछ राज आज खोलें। बॉम्बे में तो डरने की बात भी नहीं, दुबई में थोड़ा डर भी लगता है। प्लीज़। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबका स्वागत है राजन के बिहाफ पे। और राजन ने पुराना क्लिप दिखा दिया है तो अब मैं नए डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है और एक बहुत मुबारक दिन है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आज उसके बर्थडे पे आपकी किताब लॉन्च हो रही है। इससे बड़ा आशीर्वाद जो है शायद ही किसी को मिले, तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ का आशीर्वाद, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आपकी ये जो किताब जिसके लिए आप इतने पैशनेटली इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसका बॉम्बे में रिलीज़ हो रहा है। अब आप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं यहीं घूमता रहता है आसपास। सो खुशी है कि आज ये सब लोग यहाँ पर हैं और इस किताब का लॉन्च है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा कि यू हैव फॉलोड योर पैशन ऑल योर लाइफ एंड यू हैव डन इट योर वे, wrong or right, who decides? So, but glad that you did things which you wanted to do, and I'm glad to be your friend. Thank you, Rajan. और अब हमारे ख़ास मेहमान, मुख्य अतिथि। जब भी दुबई में बात होती है राजन सर की ज़िंदगी की, पिछली ज़िंदगी की, तो जो एल्बम्स वहाँ रखे हैं, जो जिक्र होता है, सबसे ज़्यादा जिनका नाम होता है वो हम सब के फेवरेट हैं। आपका स्क्रीन प्रेजेंस, आपकी एक्टिंग, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ सर कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं। अब खामोश मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो आ गया राज साहब के शेर की वजह से। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। शत्रु सर के लिए जोरदार तालियां। एवरीवन सर, आपसे गुजारिश है कि आप आएं स्टेज पे। हमारे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट शत्रु सर, प्लीज। थैंक यू गगन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है। उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी, सलोखे जी का,
और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए, कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार, आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन। ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल आपस की बात है ये। राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था। सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियाँ भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था, हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्त साहब पे आई, और ख़ासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात यह है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आएँ, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था, और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से ही मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में, या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने, हम सब ने मिलके, और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकलकर संजय दत्त हमारे घर आए थे, हमारे घर आने के बाद फिर पूजा, कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट और टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी, या कुछ परेशानियां होंगी, या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं, मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं किताब पे आ जाऊं। और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए,
तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को ये बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड वाइट में तो सब जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हम लोगों की तरह, और ख़ासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी है, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं इन्होंने, बट ही हैड द करेज, इन्होंने